So, Good Morning, morning, sir. sir. So we have started the topic of polarization, and so far in previous lecture we have discussed about the brief introduction of what is polarization, what kind of wave can be polarized, longitudinal or transverse wave, then the terminologies which will be used in the coming articles, like what is plane polarized light, what is circularly polarized light, what is plane of vibration, plane of polarization, transmission axis, uh, so polarizer, analyzer. So we have gone through the concepts of these terms. Then we have started discussing about the production of linearly polarized. So we have four different types or methods by which we can produce the linearly polarized light. And we have completed, I think, the first one, the wire grid polarizer, we have discussed. And the second one is Polaroid. So can anyone tell me that what is the limitation of wire grid polarizer? What is the problem with wire grid polarizer? Can produce only till microwaves. Yes, sir. For D microwaves, should be smaller than equal Smaller to than lambda. lambda. wavelength should be greater than microwave wavelength. Okay, lambda should be greater than, because you have to keep separation d between the copper wires less than or equal to wavelength. So for the case of visible light, wire grid polarizer cannot be fabricated with satisfying this condition, d less than or equal to lambda. So it is very difficult to fabricate this kind of wire grid polarizer. So to rescue this, we have another category, another method of polarizing the light, that is Polaroid. Any idea what is Polaroid? So in case the function of Polaroid is same as that of wire grid polarizer. It is polarizing the unpolarized light to plane polarized light. But instead of using the copper wire, now we use long chain of polymer molecules like iodine. Long chain of polymer molecules that contains iodine. So instead of stretching copper wire, we are placing the molecules of iodine in that fashion, in grid fashion. So why iodine? Because this provides high conductivity. Copper wires are used because their conductivity is high, and similarly, iodine atoms are used and their molecules are used because they provide high conductivity along the length of the chain. So these long chains molecule are aligned so that they are almost parallel to each other, one another, like in this fashion. So atoms are closely placed like this. This is your grid polarizer with copper wire. And if you replace copper wire with the molecules of iodine, that becomes Polaroid. So what is the benefit of using this category of Polaroid? First one is we are using iodine molecule because of high conductivity. Okay. So when electric field parallel to these molecule, it falls on them, they get absorbed. So electric field अगर इस direction में, इस component, जैसे हमने EY component पिछले lecture में हमने किया था, EY component, if it is falling on iodine molecule, it will get absorbed because of movement of iodine molecule. ठीक है. So ये मैंने आपको दो parallel chains बताई हैं polaroid की. If we fabricate a sheet, पूरी plane बना दें हम उसका, sheet containing long chain polymer molecules which are aligned parallel to one another. So मैं इस तरह से अगर इनकी sheets बना दूं, एक पूरा plane जिसके अंदर iodine molecules हों aligned parallel to each other like this. So this is known as Polaroid. So instead of stretching copper wire in a grid, if you are placing iodine molecule, then it become Polaroid. So benefit of Polaroid is that you can keep separation very low as compared to the separation between the copper wires. ठीक है, आप जो आपका D है माइक्रोवेव से भी कम पे रख सकते हो, बिकॉज यू आर नाउ टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक स्केल. एटॉमिक स्केल किस ऑर्डर का होता है मुझे? पोलराइड का स्ट्रक्चर एक बार क्लियर नहीं हुआ सर, दोबारा बता देंगे. मैं अभी बताता हूँ मुझे. ये आपका वायर ग्रिड पोलराइजर था, ठीक है. यस सर. अगर मैं ये कॉपर वायर हटा दूं अब और इनकी जगह मैं यहाँ पे एटम प्लेस कर दूं इस तरह से, ठीक है.
और नीचे वाली वायर में भी। इलेक्ट्रॉन्स तो वो पहले ही थे ना सर, एक तरह से एज्यूम कर। अब आपकी वायर ग्रिड में पोलराइजर में प्रॉब्लम क्या थी? इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम नहीं थी, कनेक्टिविटी तो वो दे रहा था, अब्सॉर्ब कर रहा था EY कंपोनेंट। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? सर वो ज्यादा wavelength क्लोजली सर, स्पेस नहीं कर सकते थे। यस, Yes, sir. यू कैन नॉट प्लेस 2 कॉपर वायर क्लोज इनफ, है ना? माइक्रोवेव से कम वाली वेवलेंथ में अगर आप उसको प्लेस करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं था, फैब्रिकेट करना बहुत डिफिकल्ट था। एटम के केस में क्या है, आप इनको क्लोजली स्पेस कर सकते हो। कितना क्लोजली स्पेस कर सकते हो? एटॉमिक स्केल पे आपकी जो सेपरेशन है, यहाँ डिस्टेंस एटॉमिक स्केल पे किस ऑर्डर का होता है? Sir, angstrom. यस, 10⁻⁻10 मीटर्स इज ऑफ एटॉमिक स्केल। ठीक है जी। सो इस ऑर्डर पे आप, और अगर न्यूक्लियर स्केल की बात करनी है तो 10⁻15 हो जाता है। ठीक है, Yes, पर sir. में। सो आप कॉपर वायर्स की जगह एक ऐसी शीट लो जिसमें आयोडीन मॉलिक्यूल इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हो, स्ट्रेच्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सर वो वाला पेज भी दिखा दो। ठीक है, सो दिस इज द वे। अब इनको आप पोलराइड बोलोगे। पोलराइड और वायर ग्रिड में, कॉपर वायर ग्रिड में सिर्फ यही डिफरेंस है कि आप कॉपर वायर की जगह आयोडीन एटम्स यूज कर रहे हो। बात दोनों की सेम है, कंडक्टिविटी दोनों के लिए है, बट यू कैन प्लेस आयोडीन एटम क्लोजली स्पेस। ठीक है, सो आप विजिबल लाइट को अगर पोलराइज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू गेट प्लेन पोलराइज लाइट आउट ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, देन यू कैन यूज पोलराइड्स। ठीक है, बस इसका फंक्शन वैसे ही है, सिमिलर है जैसे हमने वायर ग्रिड का किया था। ठीक है, सो आई थिंक ये इसका फंक्शन समझाने की तो मुझे जरूरत नहीं है, वर्किंग की। ठीक है सर तो ओवरऑल है तो ये भी वायर थी ना सर? मुझे वायर नहीं है, मैंने अभी क्या बोला आपको, एक ये शीट बनाई, जस्ट तो आपने एक शीट बनाई, एक प्लेन ले लिया, उसके अंदर एटम इस तरह रख दिए, यू प्लेस द एटम लाइक दिस। तो ये शीट, ये वायर नहीं है, यू आर प्लेसिंग, अरेंजिंग द एटम्स इन सच अ वे that they are horizontal as well as vertical, they are parallel to each other. So this is a sheet, this whole sheet is called polaroid. ठीक है जी, तो इसकी वर्किंग वैसे ही है। अब्जॉर्प्शन, अगर आप इस पे EX और EY कंपोनेंट, EX एंड EY कंपोनेंट, वैसे ही इसको पोलराइज करके, इसको कंपोनेंट को डिवाइड करके अनपोलराइज्ड लाइट के, इफ अनपोलराइज्ड लाइट इज फॉलिंग ऑन पोलराइड, EY कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट अब्सॉर्ब होगा? इन जनरल अगर हम बात करें, which component will be absorbed, EX or EY? EY. So in general we can say that the component which is parallel to the atoms in a line, horizontal, है ना, उसकी डायरेक्शन। So in general X और Y बोले, हम सिर्फ ये कंडीशन भी लिख सकते हैं कि जो आयोडीन एटम के पैरेलल में होंगे, इस डायरेक्शन में होंगे कंपोनेंट, वो अब्सॉर्ब हो जाएंगे, एंड दोज व्हिच आर परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, सर ये तो पूरी वर्किंग ऑलमोस्ट सेम ही है सर। सेम है, एग्जैक्टली सेम है, आपको सिर्फ स्पेसिंग का डिफरेंस बताने के लिए। सो दिस इज अ डायग्राम शोइंग द अनपोलराइज्ड लाइट falling on a polaroid. So this is a polarizer made of polaroid P1, and if सर it is वो जो falling on, सर जो एक्सरे वाली शीट होती है सर, वो भी एक पोलराइड होती है ना? हाँ बिल्कुल। सर So इसकी उसका मटेरियल क्या होता है? एक्सरे शीट, जस्ट अ मिनट, मुझे ये कंप्लीट करने तो फिर बताता हूँ। सो अगर आपके पास बच्चे ये है ट्रांसमिशन एक्सिस, ठीक है, सो इसके पैरेलल आपके पास लाइट बाहर आ गई। ठीक है, अब अगर आपने एक और पोलराइड लिया P2 जिसकी ट्रांसमिशन एक्सिस आपने परपेंडिकुलर रख दी, तो यहाँ पे आपके पास कोई लाइट नहीं। ठीक है, सो पोलराइड आपका वही पर्पस सॉल्व कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट ही लेके आ रहा है, और अगर आप उसको रोटेट करके रखते हो और चेक करना चाहते हो कि लाइट पोलराइज हुई है या नहीं हुई, so the same way, if you start rotating the analyzer, this is your analyzer, at 90 and 270 the transmitted intensity will be minimum. ठीक है जी, and if transmitted intensity will be maximum, तो एनालाइजर किस एंगल पे होगा, या 0 डिग्री पे होगा या 180 डिग्री पे होगा। अच्छा, ये 0, 180, 90, 270 एंगल किन दो लाइंस के बीच में है? ट्रांजिशन एक्सिस और वो एनालाइजर का
तो पोलराइजर का एक्सिस और एनालाइजर का एक्सिस। सो दिस इज दी, ये अगर मैं जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में ट्रांसमिशन एक्सिस है, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर ये P1 पोलराइड से लाइट कुछ बाहर निकल के आ रही है तो इसकी ट्रांसमिशन के एक्सिस के जो पैरेलल होगी वही प्लेन पोलराइज लाइट होगी। बट अगर सपोज मैं ये डायग्राम नहीं बनाता हूँ, सिंपली मैं प्लेन पोलराइज लाइट इसको फॉल करता हूँ ऑन एन एनालाइजर व्हिच हैज ट्रांसमिशन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, तब क्या होगा, तब भी कोई लाइट नहीं होगी। यस सर। ठीक है, सो आपका ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है, और ट्रांसमिशन एक्सिस किस डायरेक्शन में है, ये थीटा आपको बताएगा। सो आपका जो मेलस लॉ था I = I0 cos स्क्वायर थीटा, तो वो यही है। सो आगे हम इसको करेंगे मेलस लॉ को भी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलराइड। बेसिकली मुझे इस यूनिट में आपका कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, कोई बड़ी डेरिवेशन नहीं है, सिंपली कॉन्सेप्ट्स हैं सिर्फ, ठीक है, डेफिनेशंस, conceptual questions, numericals like this. Next one is, अभी हमने किया था, दो मेथड कर लिए हैं, wire grid polarizer and polarize for polarizing the light, unpolarized light. Third method is polarization by reflection. So ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, Brewster law. So polarization by reflection. So मैं इसको brief कर देता हूँ मुझे. So Brewster discovered that at a particular angle of incidence, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपका प्लेन है और ये है आपकी अनपोलराइज्ड लाइट, इस डायरेक्शन में फॉल कर रही है, और ये है नॉर्मल। सो किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस IP के लिए यू कैन हैव ओनली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे में 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो भी प्रूव करेंगे हम। सो ये है आपके पास दो कंपोनेंट हमने किए थे, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन डॉट, और एक है इन द प्लेन ऑफ पेपर या स्क्रीन, ठीक है। सो आपके पास जो रिफ्लेक्टेड है उसमें कौन सा कंपोनेंट जाएगा, रिफ्लेक्टेड में आपके पास जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो डॉट बाहर जाएंगे, एरो वाला नहीं, और ये जो है रिफ्लेक्टेड जो है या ट्रांसमिटेड जिसको आप बोल रहे हो, ये पार्शियली पोलराइज्ड होगी, ठीक है, कुछ कुछ कंपोनेंट इसमें मिक्स्ड वाले होंगे। सो ये जो एंगल है IP, दिस इज ब्रेवेस्टर एंगल। सो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रेवेस्टर एंगल के बराबर हो गया, या थीटा P भी इसको लिख सकते हो, जो नोटेशन यूज करनी है, सो देन योर रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंटेनिंग ओनली वन कंपोनेंट ऑफ E वेक्टर, और ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ एक कंपोनेंट है E वेक्टर का, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। So you removed one out of the two components, so you will left with the plane polarized light. So वही इसमें बताया गया at a particular angle of incidence is known as Brewster angle. So Brewster angle define किया हुआ है, theta P is equal to tangent inverse n2 by n1 या mu2 by mu1, जो भी आप यूज करना चाहो नोटेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, n1 ऊपर वाले के लिए, n2 नीचे वाले के लिए, ठीक है। So using a Polaroid, reflected light can be checked for polarization. So यहाँ अगर आप कोई Polaroid लगा दो, ठीक है, तो आप उससे चेक कर सकते हो कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है या नहीं है, obviously. So intensity of reflected light should be 0 at a particular orientation, twice in complete rotation. So अगर आप इसको 0 to 360 रोटेट करते हो पोलराइजर को यहाँ पे, so प्लेन पोलराइज्ड लाइट है या नहीं, ये कैसे चेक होगा, वो दो बार 0 हो जानी चाहिए, एक 90 पे, एक उसको 270 पे, 0 हो जानी चाहिए लाइट, मिनिमम हो जानी चाहिए। सो दैट इज द टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन रिफ्लेक्टेड पार्ट। सो ये ऐसे करके आप चेक कर सकते हो कि ब्रेवेस्टर एंगल आ गया या नहीं आया, ठीक है। सो कोई अननोन मटेरियल है, अगर आप चेक करना चाहते हो कि ब्रेवेस्टर एंगल उसका क्या होगा, सो यू फॉल द इंसिडेंट द अनपोलराइज्ड लाइट ऑन द मीडियम एंड यू चेक द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट by rotating the polarizer through a complete cycle, complete rotation. So if it is becoming 0 or minimum at two certain orientations, then it is called plane polarized light and the corresponding angle is called Brewster angle. ठीक है, ग्लास के लिए कितना बचे, आपको आइडिया होगा कुछ, Brewster angle for glass 53 approximately या 57,
ठीक है, सो दैट इज द केस। अब हमें प्रूव करना है आईपी और आरपी, या थीटा पी या थीटा, ये जो एंगल है ये भी आईपी होगा और ये है आरपी। सो आपको प्रूव करना है एंगल आईपी प्लस आरपी, इट शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, सो वो देखते हैं। सो ये वही कॉन्सेप्ट बताया मुझे इस डायग्राम में भी कि अनपोलराइज्ड लाइट विच कंटेनिंग द टू कंपोनेंट्स arrow and dot and reflecting at particular angle theta p, it will give you the dot component in reflected part and mixed component in transmitted part. So if this is the angle theta p, then this will also become theta p, and this is angle of reflection theta r. Okay, so we have to prove angle theta p plus theta r is equal to 90 degree. ठीक है जी, कर सकते हो बच्चे प्रूव? Can you prove that the angle of refraction plus angle of polarization या angle of incidence theta I is equal to theta P is equal to 90 degree? So ये प्रूव करते हैं जब, so आपको इसका प्रूफ भी आ सकता है। So ब्रेवेस्टर एंगल का हमारे पास है थीटा P is equal to tangent inverse N2 by N1। ठीक है, if wave is incident from air to glass, air का refractive index है 1, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। So theta P will become tangent inverse N2, तो यहाँ से मैं N2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ tangent theta P, N2 is equal to tangent theta P, ये ब्रेवेस्टर लॉ से निकल रहा है। So tangent को मैं sin by cos लिख लेता हूँ, so sin theta P by cos theta P, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। Now again I will apply Snell's law। Snell's law के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ पोलराइजेशन में क्या रिलेशन है? सो ये स्नेल्स लॉ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, है ना, स्नेल्स लॉ। तो यहाँ साइन आई क्या है? थीटा पी, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन आर की हमने आर की क्या नोटेशन यूज की है? थीटा आर। सो मैंने वैल्यू पुट कर दी, दैट विल बिकम N2, बिकॉज N2 ये हमारे पास N1 तो 1 हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर एयर। सो एक इक्वेशन ये है, एक ऊपर आई थी हमारे पास, ये है ब्रेवेस्टर लॉ से और ये है स्नेल्स लॉ से। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, सो ऑन कंपेयरिंग आपके पास आ गया sin थीटा p बाय cos sin थीटा r इज इक्वल टू sin थीटा p डिवाइडेड बाय cos थीटा p, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, सो सिंपली sin थीटा r इज इक्वल टू cos थीटा p, ये आ गया। सो आई रीराइट this term cos theta p in terms of sin by so cos theta is equal to sin 90 minus theta, so ये लिख सकता हूँ। so वही मैंने टर्मिनोलॉजी यूज किया, I rewrite cos theta p is equal to sin 90 minus theta। so यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास साइन है फंक्शन, राइट हैंड साइड पे भी साइन फंक्शन है, so इनका जो एंगल है वो बराबर होंगे। ठीक है, so theta r is equal to 90 minus theta, और in other words theta r plus theta p is equal to 90 degree। क्लियर है बच्चे? इसमें डेरिवेशन में कोई डाउट? नो सर। सो ये इजी है। सो यहाँ पे अब क्या पता लग रहा है? सो अब आपको प्रूफ क्या करना था कि ये जो रे है रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रे, दे आर एट 90 डिग्री। ठीक है, बाय यूजिंग ब्रेवेस्टर लॉ एंड स्नेल्स लॉ यू हैव प्रूव्ड दैट थीटा p प्लस थीटा r इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, ठीक है, अब ये जो एंगल है इसको मैं एंगल से एंगल ए बोल देता हूं फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो आई नो दैट सम ऑफ एंगल थीटा p प्लस एंगल ए प्लस थीटा r, ये कितना होगा बच्चे? तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। ठीक है, सो इट शुड बी 180 डिग्री। आई नो दैट थीटा p प्लस थीटा r इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल ए कितना हो गया? 180 minus 90, 90 degree. so it is 90 degree। so we have proved that the reflected and transmitted light, they are they are perpendicular to each other if theta I is equal to theta p। if you are following the incident light at Brewster angle, your transmitted and reflected light are at right angle to each other। क्लियर है? अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया तब ये कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक है, so ये है आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट which is plane polarized light, short form PPL, plane polarized light, and this is transmitted या refracted light
and this is partially polarized. यहाँ आपके पास जो इंसिडेंट थी दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट. सो वी हैव नोटिस दैट जो ट्रांसमिटेड है या रिफ्लेक्टेड जो लाइट है हमारे पास वो अनपोलराइज से पार्शियली पोलराइज बन गई है. सो अगर हम इसको मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करवाएं इसकी, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट विल गेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्ट एज वेल. ठीक है, ट्रांसमिटेड पार्ट एज वेल. रिफ्लेक्टेड इज ऑलवेज प्लेन पोलराइज्ड लाइट एट ब्रेविस्टर एंगल, but the reflected light is partially polarized. So multiple reflection करवाएंगे, so it will also become plane polarized light. ठीक है जी? सर ट्रांसमिटेड लाइन पार्शली पोलराइज्ड क्यों है? बच्चे इसका कुछ कंपोनेंट देखो. अनपोलराइज्ड लाइट इसमें अगर हम मान लें कि इसका 50% है और ये जो है इसके अलोंग ये 50% लाइट है. क्लियर है? सो अगर आपका 50% में से कुछ लाइट रिफ्लेक्टेड हो गई डॉट वाली इसमें से, तो ये कंप्लीट 50% रिफ्लेक्ट नहीं हुई. ठीक है, इसमें से कुछ कंपोनेंट रिफ्लेक्ट हुआ. फॉर एग्जांपल 30 to 40% फॉर एग्जांपल इस डॉट वाला जो है रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई है, विच इज प्लेन पोलराइज्ड. तो यहाँ जो आपके पास रिफ्लेक्टेड होगी दैट विल कंटेन दिस एरो एज वेल एज फ्यू डॉट्स एज वेल. तो फ्यू डॉट्स की वजह से ये पार्शियली पोलराइज्ड है, अदरवाइज ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाती इफ इट कंटेन्स ओनली द एरोज. डॉट नहीं होते इसमें तो ये भी प्लेन पोलराइज्ड हो जाती. ठीक है, ओके. तो Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे. Sir, can you please go back to the previous slide? Sir, इससे भी पहले वाली. In this slide, we have simply used the concept of Brewster angles and Snell's law. Angles obtained from Brewster and Snell's law. That's it. So from that, we have proven that at angle of incidence, which is Brewster angle, then theta r plus theta p is equal to 90 degree. Yes, sir, I have noted it down. Thank you, sir. So इस स्लाइड में बच्चे हमने पहले तो एक ही मीडियम यूज किया था of certain refractive index. If I put a parallel slabs one above the other, so मैंने इसमें यहाँ 3 slabs की example दिखाई है. And if unpolarized light is incident at angle theta p, polarizer angle, Brewster angle पे, so आपके पास reflected light 1, it is plane polarized light. ठीक है, और जो refracted है it is partially polarized light. ठीक है, so मैं इसको further दूसरे मीडियम से भी पास कर रहा हूँ. सो ऑन पासिंग थ्रू मल्टीपल मीडियम्स, सो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट 2, 3, 4 ये तो सब प्लेन पोलराइज्ड लाइट है. ठीक है, सो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑन पासिंग थ्रू दिस 3 स्लैब्स आपके पास जो आउटपुट में ट्रांसमिटेड लाइट आ रही है दिस इज ऑलमोस्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो इसमें डॉट खत्म हो गए हैं, अब सिर्फ एरोज बचे हैं आपके पास. ठीक है जी. सो बाय दिस वे यूजिंग द मल्टीपल और पाइल्स ऑफ प्लेट्स यू कैन ऑल्सो पोलराइज द ट्रांसमिटेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट एज वेल. ठीक है, आप कर क्या रहे हो, ये जो डॉट हैं इनको मल्टीपल इंटरफेस से रिफ्लेक्ट करवा रहे हो. तो पहले 30-40% रिफ्लेक्ट हो गए थे, जो बचे उनको आपने इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करा दिया, फिर इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. सो ऑन गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट्स आपके पास जो ट्रांसमिटेड लाइट है दैट विल ओनली कंटेन द एरोज. डॉट्स आपके रिमूव हो गए, मतलब एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है दैट इज removed by reflections, multiple reflections. ठीक है, so this is the concept of producing the plane polarized light using the method of reflection of light. Clear है बच्चे, इसमें कोई डाउट? No, sir. Clear. Then we have polarization by डबल रिफ्रैक्शन. सो अभी मैंने आपको ये कल कॉन्सेप्ट बताया था कि डबल रिफ्रैक्शन होती क्या है. सो यहाँ से आपको ये क्लियर भी दिख जाएगा. फॉर एग्जांपल ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू सर्टेन क्रिस्टल लाइक कैल्साइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल. ठीक है, कैल्साइट ये नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल है. सो इट्स स्प्लिट बीम इनटू 2 बीम्स. सो यहाँ देखो आप, इफ यू आर लुकिंग एट दिस पेंसिल थ्रू दिस कैल्साइट क्रिस्टल, सो आपको 2 पेंसिल दिख रही हैं 1 and 2. ये कैसे पॉसिबल? अगर आप
कैल्साइट क्रिस्टल किसी पेपर के ऊपर रखते हो तो यहाँ पे आप देखो आपको बॉक्सेस डबल में दिख रहे हैं यहाँ पे। सो एक मटेरियल है और आप अगर उसको कैल्साइट क्रिस्टल से देख रहे हो, यू आर गेटिंग 2 पेंसिल्स या 2 पिक्चर्स। हाउ इज इट पॉसिबल? सर 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। 2 बार रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्टेड लाइट इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये मीडियम है एंड इफ लाइट इज हिटिंग लाइक दिस ऑन दिस मीडियम, सो आपके पास एक लाइट तो ये होगी, दूसरी लाइट ये होगी। ठीक है, सो ये लाइट बाहर आ गई और दूसरी लाइट ये बाहर आ गई। सो आपके पास बीम तो ओरिजिनली 1 थी, बट अब वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो गई। दैट इज व्हाई इफ यू आर पासिंग द लाइट थ्रू दिस कैल्साइट क्रिस्टल यू आर गेटिंग 2 कंपोनेंट्स। तो ये एग्जांपल है बच्चे, आप डेली लाइफ से कोरिलेट कर सकते हो कि हाउ यू आर लुकिंग 2 लाइट्स बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। सो 2 कंपोनेंट्स हो गए बच्चे, क्लियर है? अब ये 2 कंपोनेंट है, अनपोलराइज्ड लाइट में हमारे पास 2 कंपोनेंट थे जिसको हमने किसी कैल्साइट क्रिस्टल या क्वार्ट्ज क्रिस्टल से पास करके डिवाइड कर लिया इनटू 2 सेपरेट लाइट्स। ठीक है, हाउ वी कैन प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट नाउ? अब हमारे पास 2 सेपरेट स्लाइड है। ठीक है, मैं इसको और क्लियरली बताता हूं कि अनपोलराइज्ड लाइट थी और इसको इफ आई पासिंग थ्रू कैल्साइट क्रिस्टल, ठीक है, सो आई हैव डिवाइडेड दिस एरो एंड डॉट व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस कैल्साइट क्रिस्टल। सो मेरे पास 2 कंपोनेंट्स आ गए, 2 डिवाइड हो गए। एक है ऑर्डिनरी रे जिसको ओ रे लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी रे, एंड सेकंड वन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। So ordinary ray contains dots, मतलब E vector perpendicular to the plane, and extraordinary ray contains arrows, that is E vector along the plane, parallel to the plane. So अब हमारे पास 2 कंपोनेंट आ गए, सेपरेट कंपोनेंट्स। पहले ये मिक्स थे, अनपोलराइज्ड लाइट थी, अब ये हमारे पास 2 कंपोनेंट आ गए। इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? हाउ वी कैन ऑब्टेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट आउट ऑफ दीज 2 रेज? क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसी होती है? एनी आइडिया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या है, या तो अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, या तो इसके कंपोनेंट इस तरह होने चाहिए, या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट में इस तरह होने चाहिए कंपोनेंट, दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। सो हम क्या करें, आइदर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को यहां क्रॉस कर दें, ऑर्डिनरी रे हमारे पास आगे ट्रेवल कर जाएगी, सो विल हैव ओनली 1 कंपोनेंट, सो दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। या इन रिवर्स हम क्या करें, ऑर्डिनरी को क्रॉस कर दें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को पास करवा दें, so we'll get component only along or vibration only along a particular direction, not all the directions. ठीक है जी, क्लियर हुआ बच्चे कि डबल रिफ्लेक्शन से हम पोलराइजेशन कैसे अचीव कर सकते हैं? सर इंडिविजुअली तो सर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना, सर कैल्साइट का फॉर्मूला क्या था? CO3 CaCO3 and SiO2 for quartz, silicon oxide and calcium carbonate. So इंडिविजुअली तो ये आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, बट आपको रिमूव भी तो करना पड़ेगा ना। अगर आप दोनों लाइट को एक साथ देख रहे हो, यू विल अगेन दे विल मिक्स विद ईच अदर, इंटरफेरेंस हो जाएगा इनका। ठीक है, सो इनको आपको अगर प्लेन पोलराइज करना है तो यू हैव टू रिमूव वन ऑफ द लाइट्स। सो एक लाइट को ब्लॉक कर दो, दूसरी को पास करवा दो। ठीक है, वो कैसे करेंगे? वो भी करते हैं। सो वन ऑफ द रिफ्रैक्टेड बीम्स व्हिच ओबे स्नेल्स लॉ, अब इनके नाम में क्या स्पेशल है? ऑर्डिनरी रे, इसको क्यों बोला गया है? दिस ओबेज स्नेल्स लॉ, एंड दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, इट डज नॉट ओबे स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ को ओबे नहीं करती है। ठीक है, स्नेल्स लॉ अभी हमने किया था कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय कॉस आर। ठीक है, ये जो लॉ है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ये ओबे नहीं करती है, बट ऑर्डिनरी रे ओबे करती है। ठीक है, तो ये प्रूवन, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, और सेकेंडली ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, इनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करती हैं। अच्छा, डिफरेंट स्पीड के साथ कैसे मूव कर सकती हैं? ओरिजिनली एक ही लाइट थी, अनपोलराइज्ड लाइट,
क्रिस्टल भी एक ही है, कैल्साइट क्रिस्टल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक ही है, म्यू। तो इनकी स्पीड कैसे चेंज हो गई? सर ई वेक्टर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। सर ऑर्डिनरी रे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। सर इनका ऑप्टिकल पाथ अलग है। अलग तो है, बट आप इनिशियली कंडीशन तो देखो, अनपोलराइज्ड लाइट इज सेम फॉर बोथ, द मीडियम थ्रू व्हिच दे आर पासिंग इज सेम, बट velocity is different. So mu is equal to of ordinary ray, ये है बेंडिंग कम हो रही है ना सर, तो भी कह सकते हैं। हाँ, वो क्यों हो रही है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। So mu of ordinary ray is c by v, refractive index और velocity में relation. So if this is moving with velocity v0 vo and this is with v e, ठीक है, so mu of e extraordinary light is c by v e, क्लियर है जी? अब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, सो इट मींस दे आर फेसिंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट तो सेम है, दे आर बोथ आर मूविंग विद द स्पीड, c is the same, speed v0 and ve are different, they are experimentally proven, so it means they are facing different refractive index. So ordinary ray will feel, if it is passing through calcite crystal, it will feel different refractive index as compared to extraordinary ray. So that is why I have written mu o and mu e. पहले था refractive index mu only, but ordinary light is facing refractive index of mu o type and extraordinary light is facing mu e type. So material same hai, but the two different lights having two different components perpendicular to each other, they are facing different refractive index. That is why their speed becomes different. So ये explanation है हमारे पास। क्यों हो रहा है सर? अब ये तो experimentally proven concept है ना बच्चे। अगर आपकी vibration different direction में है, so किसी particular direction में किसी particular component को तो आप favor करोगे, किसी crystal की structure favor करेगी उसको pass करने के लिए, और किसी को oppose करेगी। So because of that, because of the structure of the crystal, ये इस तरह का difference आ रहा है हमारे पास। So इसको आगे भी देखते हैं। So इस diagram से भी explain करूंगा मुझे, पर ये brief है। So extraordinary ray travels in the crystal with speed that varies with direction, ठीक है, different direction में। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे इस डायरेक्शन की बजाय किसी दूसरी डायरेक्शन में होती और यहां से बाहर निकल रही होती, सो दिस वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी वी प्राइम, दे बोथ आर डिफरेंट। इट मींस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे वेलोसिटी विल डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंस एज वेल, या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एज वेल। डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी होगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की। सर हर पाथ के लिए अलग, हर पाथ के लिए अलग। and described by ellipsoid, ये मैं बताऊंगा आगे डायग्राम से कि ellipsoid कैसे होगा। The ordinary ray travels in crystal with a constant speed in all the direction, that is why it is obeying the Snell's law and described by spheroid. So ये डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा कि ये ellipsoid और spheroid का कंसेप्ट क्या है। तो ये यहाँ से क्लियर हो आपसे कि ऑर्डिनरी लाइट ये सेम स्पीड के साथ डिफरेंट डायरेक्शन में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट ये डिफरेंट स्पीड के साथ डिफरेंट डायरेक्शन। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, जो डायरेक्शन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो? आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। आइसोट्रोपिक व्हिच इज हर डायरेक्शन में सेम है वो आइसोट्रोपिक है ना? यस यस, और व्हिच इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट इज एनाइसोट्रोपिक। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, whereas ordinary ray is isotropic in nature, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे इज कांस्टेंट एंड is direction dependent for extraordinary। अब velocity अगर सेम है ऑर्डिनरी रे की, सो मैंने अभी रिलेशन बताया था कि mu is c by v। सो अगर velocity ऑर्डिनरी रे की हर डायरेक्शन में सेम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हर डायरेक्शन में सेम होगा। बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की velocity अगर हर डायरेक्शन में डिफरेंट है तो हर डायरेक्शन में वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फील करेगी। एक्चुअल में कैल्साइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही है, कांस्टेंट है mu, बट बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे इट विल फील like it is passing or traveling through the medium of different refractive index, ठीक है जी। So अब in case of calcite और quartz crystal there is one direction। So अगर मैं calcite की बात करूं, so एक डायरेक्शन ऐसी होगी जिसके along ordinary और extraordinary light दोनों की velocity सेम हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम optic axis या principal axis। So the axis of the crystal along which
velocity of ordinary or extraordinary light becomes equal. That axis is called optic axis of that crystal. ठीक है? So calcite में हमारे पास 3 एक्सिस हैं इस तरह की, एक ऑप्टिक एक्सिस है और 2 उसकी बायएक्सियल एक्सिस है, पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस. So इन 3 डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी सेम रहेगी. So इसका क्या मतलब है? No double refraction occurs in these specific directions. वेलोसिटी सेम हो गई तो वो डिवाइड नहीं होगी, उनकी डबल रिफ्रैक्शन नहीं होगी, वो मर्ज कर जाएंगी. ठीक है? एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे आर पोलराइज्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये मैंने फिगर से भी एक्सप्लेन किया था. ऑर्डिनरी रेज आर पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के लिए एरोस. ठीक है? ठीक है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल. सो ये आपके दोनों पास रेज मतलब वो होंगी पोलराइज से, दोनों पोलराइज होंगी. मैंने अभी कांसेप्ट बताया था ना, प्लेन पोलराइज में क्या होता है, कंपोनेंट वाइब्रेट अलोंग ओनली वन डायरेक्शन. सो एरो भी एक ही डायरेक्शन में और डॉट भी एक ही डायरेक्शन में. डॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, एरो इन द प्लेन है. तो दोनों प्लेन पोलराइज लाइट है, बट आपको सिर्फ एक कंपोनेंट चाहिए. सो यू हैव टू अटेन्युएट वन ऑफ द टू कंपोनेंट इन ऑर्डर टू गेट द प्लेन पोलराइज लाइट only vibrating in one particular direction at the output. So ये कैल्साइट क्रिस्टल है बच्चे. ठीक है? इसकी ऑप्टिक एक्सिस ये रही. सो इसके अलोंग अगर आप लाइट फॉल करवाओगे, लाइट इज इंसिडेंट एट दिस डायरेक्शंस, दीज डायरेक्शंस, सो कोई डबल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, आपको कोई दो पेंसिल्स नहीं दिखेंगी, एक ही दिखेगी. बट इंस्टेड ऑफ दीज 3 एक्सिस अगर किसी और डायरेक्शन में आप इंसिडेंट करवाते हो, यू विल गेट डबल रिफ्लेक्शन. ठीक है? क्लियर है बच्चे?